Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video we are going to solve another very standard problem and very important question of stack, that is infix to postfix conversion. In subsequent videos we will be doing postfix to infix and the evaluation of postfix and all sorts of question around infix postfix. So let's get into the video. So before starting, have you ever wondered that why do we need infix to postfix conversion? infix इतना अच्छा सा expression तो दिखता ही है हमें, तो हमें क्यों postfix करने की ज़रूरत है? So for humans, for us it's very easy to read infix expressions and we are able to scan it and solve it. हम precedence फटाफट decide कर लेते हैं देख के कि अच्छा ये multiplication है, ये divide होगा फिर add होगा. लेकिन computer it has to scan it again and again when it's an infix expression and then decide कि कौन सा ज़्यादा priority and कौन सा कम priority है, and then it has to evaluate it. So when it's infix it has to scan it again and again. लेकिन when we convert that infix to postfix, then computer does not have to think about all that. वो खाली जैसे उसको ऑपरेटर दिखता जाएगा वो वैसे वैसे उसको evaluate करता जाएगा. So it's just easy to parse a postfix expression. It's easy to evaluate that. It less time consuming than infix, and that is why we do this. Now I hope you know what infix and postfix is. Infix is when it's the operator is in between the operands, and postfix is when the operator is after the operands. It's very simple to remember. infix मतलब बीच में, and post मतलब बाद में, तो मतलब a b plus is postfix and a plus b is infix. Okay, so here we have taken an example, ये expression जिसको हमको postfix में convert करना है. So there are certain rules. While I solve this problem I will tell you the rules as well. Okay, so what we are going to do is we are going to scan this expression character by character and we will see what we have to do. Okay, so the first character is x. तो जब भी x है that is an operand. We don't have to think about anything. हम directly एक operand को postfix expression में डाल देंगे, right? अभी आ रहा है एक operator. Now this operator we will push into the stack क्योंकि we have to see कि ये operator कब operate करेगा किसी भी characters पे. Then it's y. Again, when it's a symbol you don't have to think about anything. You just add it to your postfix expression. Now we get a slash. Sorry, that is a division operator. Now think of it like this. So whenever there is something in your stack of higher precedence and something comes which is of lower precedence, जैसे कि इस point पे हमारा stack कैसा दिख रहा है, अभी ये है हमारे stack में and एक slash I mean division operator आना चाह रहा है. So this is of higher precedence. So nothing that is of higher precedence will sit at the bottom of something which is of lower precedence, right? So think of it in this way कि एक division operator wants to come in a stack and sit on top of this exponential operator, but that is not possible because इसका precedence ज़्यादा है and कोई भी ज़्यादा powerful इंसान will not stay at under some this lower precedence, right? So this will naturally want to come out of this. तो इसीलिए हम किसी भी higher precedence को stack में नहीं रखेंगे when कोई छोटा precedence आ रहा है. तो we will pop this out of the stack. इसको pop करके we will put this in our postfix expression and ये अब हम इसको push कर सकते हैं stack में, right? तो ये जब बाहर निकल गया stack से, then our division operator can come here. Next is our bracket. Okay, so ये जो bracket है ये ओपनिंग ब्रैकेट, इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है वैल्यू, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसी को करते हैं. सो इसीलिए ये ब्रैकेट में हम रखेंगे और फिर इसमें जो भी जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा वी विल जस्ट पॉप एवरीथिंग आउट एंड हम पहले उसी को इवैल्यूएट कर रहे होंगे. तो फिर अभी हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है. वी हैव 5. So whenever an operand comes we will just put that into our expression. Now there is star. अभी ये स्टार को हम इस डिवीजन से कंपेयर नहीं करेंगे, इसी टॉप ऑफ स्टैक से ही कंपेयर होगा, राइट? तो ये हो गया हमारा, ऐसा दिखेगा अभी. और अब आया z. अगेन स्टैक हमारा वैसा ही रहेगा z. एंड
देन कम्स द क्लोजिंग ब्रैकेट. सो एज आई वाज सेइंग, जैसे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हमें इनकाउंटर होगा, दैट मीन्स दिस इज ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी. मतलब ये अब हमें पहले इवैल्यूएट करना है. सो वी विल पॉप एवरीथिंग जब तक हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट इनकाउंटर नहीं हो जाता. सो अभी हमारे पास एक ही ऑपरेटर है अंदर, विच इज अ स्टार. सो विल जस्ट पॉप दैट आउट एंड वी विल डिस्कार्ड दीज ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स, दिस क्लोजिंग ब्रैकेट विल नेवर गो इनटू द स्टैक. नाउ अब हमारा स्टैक में ये है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज प्लस. नाउ अगेन सेम बात है, अगर प्लस आना चाह रहा है एंड ऑलरेडी डिविजन है, तो डिविजन वोंट स्टे बिलो समथिंग विच इज लोअर प्रेसिडेंस, सो दैट विल बी पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक. तो ये हमारा पॉप आउट हो गया स्टैक से डिविजन. एंड हमारा प्लस अब यहाँ पे पुश हो सकता है. अभी यहाँ पे डिविजन के पहले और भी कुछ होता है. इमेजिन अगर यहाँ पे स्टार होता है या कुछ भी होता है जिसका प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो सभी कुछ बाहर आ जाता है. ठीक है, तो हम वी विल पुश प्लस ऑपरेटर इनटू द स्टैक ओनली व्हेन, जब उस स्टैक के अंदर कोई भी हायर प्रेसिडेंस का नहीं है. तो ये आ गया, प्लस आ गया स्टैक में. एंड अभी हमारा पोस्टफिक्स ऐसा दिख रहा है. एंड फाइनली जब ये लास्ट ऑफ 2 आएगा, सो व्हेन 2 कम्स, तो हमारा स्टैक में सिर्फ प्लस है और हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, एक्स वाई पावर 5 z स्टार स्लैश आई मीन डिविजन. देन 2 आया, वो यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा. एंड देन एट द एंड व्हेन वी हैव स्कैन्ड द एंटायर एक्सप्रेशन एंड द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सो विल जस्ट pop everything out of the stack and put this here. So see, this is our final postfix expression. Now if you try to evaluate it, becomes very easy. You see a first operator, so you just operate this operator on these two operands, so it becomes this thing. Now ये अब आपका एक है, फिर 5 z stars, that means you first multiply these two, so you are multiplying these two and आपका ये दो operator के संग now this and this will be divided. so आप देख लो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते, फिर क्योंकि इस डिवीजन और इसमें इसका ज्यादा प्रायोरिटी है तो आप पहले ये करते, उसके बाद आप इसको डिवाइड करते. दैट इज व्हाट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज सेइंग. एंड देन यू विल जस्ट ऐड टू टू इट, राइट. तो ये पूरा से आप +2 कर दोगे. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि ये कन्वर्जन कैसे होता है पूरा. सो लेट्स जस्ट गो एंड कोड दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेन फंक्शन लिखा हुआ है, वेर आई हैव मेड दिस फंक्शन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जहाँ आई एम पासिंग द एक्सप्रेशन एज अ स्ट्रिंग. सो लेट मी राइट द फंक्शन विच विल रिटर्न स्ट्रिंग. दैट मीन्स माई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इट विल रिटर्न. द नेम ऑफ द फंक्शन इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इट विल एक्सेप्ट string, right? Now obviously first of all we will be using a stack, so let's just declare a stack of type character. Now what we have to do is we have to iterate over the entire expression, right? So we'll just write that I is less than s dot length and I plus plus. Now let's just take this out in a variable character, हमारा character जो है. So let's just see कि यहाँ पे conditions क्या क्या हैं. So the first condition is, अगर हमारा जो character आ रहा है अभी, if that is a operand, तो अगर that can be either a character and it can be greater, I mean capital, or a small character. So let me quickly write this conditions and C is less than equal to capital Z, or it can be also a digit, right? तो digit भी हो सकता है वो 0 से 9 तक के बीच का. अगर this is the case, then we don't have to do anything. We'll just add this to our result. C. Okay, we did not make this variable, so declare नहीं करा हमने. तो एक variable declare करना पड़ेगा string type का postfix, which is basically my result, which I'm going to return to my main function. So अगर मेरा एक operand है, तो we'll directly add that to our postfix expression. Else it can be say it can be an opening bracket, right? तो अगर वो एक opening bracket है, if it's an opening bracket, we just directly push it to our stack. As we saw कि हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें directly से push करना है, क्योंकि anyway हमें brackets के अंदर का सबसे पहले करना होता है
प्रोसेस, तो मतलब कि मेरा ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई है. नाउ नेक्स्ट इज अगर ओपनिंग नहीं है एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट होने का क्या मतलब है कि जब तक हमारा स्टैक में कुछ है एंड जब तक हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट इनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक वी विल पॉप एवरीथिंग आउट. सो व्हाइल माय स्टैक इज नॉट एम्प्टी and my stack dot top is not sorry stack dot top is not equal to opening bracket, जब तक ये नहीं है तब तक what we are going to do is we are going to add the top of our stack, मतलब हम ऑपरेटर जो भी मेरा सबसे ऊपर है स्टैक में उसको अपना पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे st dot top and we will pop the stack, right? तो जब तक हमारे स्टैक में कुछ वैल्यू है और जब तक हमारा टॉप ऑफ स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तब तक वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, वी डिड अ मिस्टेक हियर, वी डिड नॉट पॉप दिस ओपनिंग ब्रैकेट आउट. हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट भी पॉप करना था. तो वाइल जब ये खत्म हो गया तो वी हैव टू चेक इफ आर स्टैक अगर एम्प्टी नहीं हो गया है तो वी हैव टू पॉप दिस एलिमेंट आउट, राइट. अब ये हो गया. अब हमारा फाइनल जो कंडीशन है दैट इज कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, ऑपरेंड नहीं है कोई भी, तो मतलब एक ऑपरेटर है. तो उस केस में हमें क्या करना है, while my stack is not empty. Now guys, this is a very important condition to always check that your stack is not empty, because अगर stack empty होगा and आप उस पर कुछ top operation या pop operation करने की कोशिश करोगे then your program can fail abruptly. So you have to always check that your stack should not be empty. And अब क्या हमें देखना है कि बिफोर पुशिंग एनी ऑपरेटर इनटू योर स्टैक यू हैव टू चेक दैट वॉट एवर इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इट्स प्रेसिडेंस शुड बी लोअर देन द इनकमिंग कैरेक्टर. अगर उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है टॉप का स्टैक का तो यू हैव टू पॉप दैट थिंग आउट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. सो प्रेसिडेंस इज अ फंक्शन. लेट्स जस्ट राइट दिस प्रेसिडेंस फंक्शन फर्स्ट. दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द प्रेसिडेंस ऑफ एनी कैरेक्टर दैट वी आर गोइंग टू सेंड. सो let's just make a switch case here. तो अगर मेरा प्रेसिडेंट सबसे अगर मेरा आया पावर ये एक्सपोनेंट वाला कैरेक्टर then we have to return 4 क्योंकि इसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट इज माय स्टार एंड केस डिविजन. ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो इन दोनों के केस में विल रिटर्न 3, राइट. नेक्स्ट हमारा है प्लस एंड केस माइनस, तो दिस विल रिटर्न 1, ठीक है. तो वो प्रेसिडेंस के हिसाब से हमारा रिटर्न करता रहेगा. नाउ वी जस्ट हैव टू फॉर द फॉर्मेलिटी, क्योंकि ये हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो ये रिटर्न -1, ऑल्दो ये यहाँ पे किसी न किसी चीज़ में आ ही जाएगा. तो दिस विल नेवर रीच टू दिस. बट कुछ आईडीईज में एरर आता है अगर आप यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप लिखा है और आपने एक जेनेरिक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो इसलिए वो लिख देते हैं ना. हाँ, तो अब यहाँ पे हमें चेक करना था बेसिकली कि प्रेसिडेंस ऑफ द टॉप ऑफ माई स्टैक इज greater than precedence of the character that is incoming, that is coming right now, that we are seeing right now. If that is greater तो हमें यही करना है. Basically we will add that to our postfix expression and we will pop it out, क्योंकि जैसा हमने बोला कोई भी ज़्यादा powerful will not like to be under some character which is of lower precedence. तो इसीलिए अगर stack का top ज़्यादा है तो that will be popped out and written to our postfix expression. So not only greater but also if this is equal. So मतलब अगर स्टार है एंड डिविजन आया या फिर डिविजन है और स्टार आया या एडिशन है और सब्सट्रैक्शन आया, तो अगर इक्वल प्रेसिडेंस का भी कुछ आ रहा है सो एज इन सब का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है तो उसका मतलब कि हमें पॉप कर लेना है और प्रिंट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर पहले ए स्टार बी स्लैश डिवाइडेड बाय सी है तब ये पहले मल्टीप्लाई होगा एंड फिर डिवाइड होगा, और वहीं अगर पहले डिवाइड बी और स्टार सी होता तो पहले डिवाइड होता फिर स्टार होता. सो दैट मीन्स कि जो भी पहले हमें दिख रहा है हम वही पहले ऑपरेट करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंस ये ग्रेटर एंड इक्वल होगा, क्योंकि अगर वो इक्वल भी है तो भी वो हमारा स्टैक से
पॉप आउट हो जाएगा एंड पोस्ट फिक्स में ऐड हो जाएगा. नाउ आफ्टर दिस इज डन वी विल जस्ट push the character, the incoming character right now, operator right now to our stack. So this finishes our for loop. After this is done, this for loop is done, we have to run, we have to see that my stack has become empty. We have to make sure कि हमारा stack खाली हो चुका है, और अगर वो खाली नहीं है so we'll have to do again the same thing. यही चीज हमें वापस करनी है कि हम जितना भी उसमें है सब निकाल के we add it to postfix and we pop it out. Now after this is done we just return this postfix expression जो हमारा बन चुका है. Fine. Okay, now let's just run this code and see. Oh, sorry, somewhere I've written push without any. I have to push this. Okay. Any other error? No, same error. Okay. Okay, so as you can see, we are getting the correct output as what we are supposed to get. So this is another expression. Let's see if we get the output for this. You can, and while looking at the answer, you can very quickly scan कि correct है या नहीं है. For example, यहीं पर अगर आप देखो तो सबसे पहले C और D का ये ऑपरेशन होना चाहिए, इसके बाद ये माइनस होना चाहिए. सो अगर आप यहाँ पे जाओ तो आप देखो यही होगा, फिर E माइनस होगा, उसके बाद इफ यू कैन सी GH मल्टीप्लाई होगा, फिर GH से F प्लस होगा, जैसे कि यहाँ पे है GH मल्टीप्लाई होकर F प्लस होगा. उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, दैट मीन्स ये और ये एक्सपोनेंट होगा उसका. सो दैट इज़ व्हाट, दो ब्रैकेट्स का पहले सॉल्व होकर सिंस इसका ज़्यादा है तो होगा. सो वी विल ईजिली ग्लांस थ्रू दिस, सी कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है. Yeah, so that's it. So that's it for this video. I hope you like it. I hope infix और postfix का concept अब clear है आपके mind में. Do let me know in the comment section below how did you like the video, and stay tuned for such videos. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.